Hello champions, welcome back to the channel. Okay, so today we are going to start the 2026 and 27 batch. Okay, so last year, in the mid of the academic year, I started the YouTube channel and I couldn't be able to be so consistent, but this year definitely with 100% what I can say promise or whatever you say. So with that I will be with you throughout the year. Okay, holding the hands wherever you need support. I will be with you throughout the year. Clear? Okay. So today we are going to start the new chapter. So I will go with the NCERT serial number only, like all the 14 chapters. So according to that serial number only, we will go one by one. Okay. See, today in this first video, I'm going to introduce what am I going to do, and then we will proceed with the topics. Okay, now, so basically, see, if you ask me, I'm more comfortable in English rather than Hindi, but in between, I will add Hindi also. Okay, it will be a mixture of इंग्लिश एंड हिंदी ओके अगर जरूरत पड़ा तो अगर हिंदी का सेंटेंस सो आई विल ऐड दैट आल्सो ओके फाइन so then second point that I want to discuss that would be I will go type wise questions okay in first type whatever possible okay you will understand as we go in the further discussions okay fine and that is one and I will try to finish up the syllabus before you will come up to the SA2 examination and then we will stick to the mostly MCQs we will try to solve around 100 to 150 questions on each chapter particularly focusing on MCQs because you may also write a different college entrance exam okay if you talk about my school SSPS so last year, nothing but currently the batch which is writing the examinations right now. So many of them, maybe around 20 students got free seat in Gurukul itself. Okay, I think 7 and 8. It is around 15 students. Okay, and it's a good number. And probably I will help you to get the confidence on MCQs. What are the tricks we can use and all so after the completion of the syllabus and in the syllabus we are going to cover mostly all the type of question that is possible in any chapter okay in keeping in mind what CBSE is asking the questions what type of questions and everything we will discuss in deep okay and concept clarity 100% clarity will give okay questions many from many books I'm going to refer and many questions you will get okay so no need to worry about that so basically it will save your tuition fees okay you stick to this channel so daily definitely I will try to upload the videos daily and if not possible next day I will upload 2 videos okay even if I'm busy in corrections and all okay fine okay so to end this discussion and let us start the chapter okay now end means to stop that talk and actually for start the chapter okay now so first chapter is real number okay so let us start the chapter with understanding that what is the meaning of these real numbers okay so basically we learn number system okay so in number system actually we start the number system with natural number okay so natural numbers will start natural numbers we denote it by capital N and those natural numbers include 1 2 3 till infinity okay up to so the smallest number is 1 and the largest number is infinity okay we don't know it is okay then we learn whole numbers okay so in the natural numbers only 1 2 3 till up to so on we'll add one more digit one more number that is 0 then it will become whole number fine then we learn integers we can denote it by I or Z also because of the scientist name and these two we denote by capital N and capital W okay
So in the whole numbers, okay, nothing but 0, 1, 2, 3 up to so on infinity. If you add these negative numbers also, minus 1, minus 2, minus 3 here up till sometimes we can write minus infinity, but it means that it is going, okay, it is going, this series is endless, and at the end the last number we don't know, okay. So that is the meaning. It's like we can, to differentiate between that last number and this last number, we can take minus n. Then we talk about rational numbers, and rational numbers we denoted by capital Q. Okay. So basically, if I talk about rational numbers now, actually first condition, I'm not writing the set of numbers. So first condition for rational number is to, okay, first condition है जो भी नंबर जो कि p by q के फॉर्म में है, ओके, उसको वो फर्स्ट कंडीशन है p by q के फॉर्म में रहना, ओके। सेकंड कंडीशन है जो भी डिनोमिनेटर नंबर है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहना, मतलब 0 के अलावा कोई भी डिजिट्स या फिर कोई भी नंबर हो सकता, ओके, डिनोमिनेटर में। और थर्ड कंडीशन है ये दोनों नंबर p और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर इंटीजर्स होना, ओके। This p and q should belongs to integer. Fine. Now उसके बाद हम पढ़ते हैं irrational numbers. Okay. Irrational numbers एक्चुअली जो भी रेशनल नंबर नहीं है ना वो irrational नंबर होता, okay? अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर ये तो नॉट डिफाइंड है, ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है मैथ में। अगर कुछ भी नंबर है 3/0 समझो, ये नॉट डिफाइंड है, ये रेशनल भी नहीं है, रेशनल भी नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, ओके फाइन। सो दिस इज द डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नेक्स्ट एक्चुअली irrational number we talk about irrational number, so that means actually we take inside the root नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है समझो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या होता, irrational नंबर होता, ठीक है ना। तो इतने चीजें तो पढ़े, ओके। तो अगर हम रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ये तीनों को इंक्लूड करता है। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी है, और रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर्स भी है, और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी है, ओके। अगर वो नेचुरल नंबर है तो रेशनल भी होता और नेचुरल नंबर भी होता। ये नंबर्स होल नंबर्स भी है और रेशनल नंबर्स भी है, ये नंबर इंटीजर्स भी है और रेशनल नंबर्स भी है, ओके। तो बेसिकली एक्चुअली अगर रियल नंबर्स को अगर डिफाइन करना है ना तो हम क्या डिफाइन करते हैं, मतलब सो ये नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये तीनों मिला के और p by q और रेशनल नंबर्स, मतलब जो भी 3/4 ये p by q के फॉर्म में है, ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स यू कैन से। ये पूरे रेशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं, ओके। और ये बाकी छोड़े तो ये रेशनल नंबर्स हो गए, ओके। इन दोनों को मिलाए तो, इन दोनों के मिलाते जो भी सेट ऑफ नंबर्स मिलता ना आपको वो रियल नंबर्स होता, ठीक है ना। जो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों को मिलाए समझो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाए तो रियल नंबर का सेट आपको मिलता, ओके। फर्स्ट पॉइंट आप इसको स्पीड अप करके लिख सकते हैं, फर्स्ट रियल नंबर्स, ओके। सो रियल नंबर्स हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो कि कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, ओके, जो कि क्यू डैश भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, क्यू डैश से डिनोट करते हैं, okay. Set of rational numbers and irrational numbers are called real numbers, are called real numbers, okay fine। उसके बाद हम इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। हम रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ओके। आप रियल नंबर के बारे में इतना, एक्चुअली रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स को मिलाए तो रियल नंबर्स होते हैं, और उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उतना ही, ओके, ठीक है। उसके बाद
एक्चुअली आपको दो बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि शुरू शुरू में अगर क्लैरिटी आए तो बहुत अच्छा है। ओके, वो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर है प्राइम नंबर्स। ओके, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में, एक्चुअली इसमें प्राइम नंबर के बारे में बहुत बहुत डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स के बारे में क्लैरिटी रहना, और इसका अपोजिट जो भी नंबर है दैट इज कॉम्पोजिट नंबर, उनके बारे में भी क्लैरिटी रहना। ओके, ये प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है। ओके, अगर आप सीबीएसई 10th क्लास में है तो आपको मालूम रहता, फिर भी एक बार ये रिवीजन समझो, या फिर यू नो गोइंग बैक एंड लुकिंग एट द थिंग्स। फाइन, ओके फाइन। नाउ एक तरीका क्या है प्राइम नंबर्स का, वैसे ओके विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, वो भी वैलिड डेफिनेशन है, बट अभी हायर क्लासेस में आप फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बिफोर प्राइम नंबर्स अगर फैक्टर्स को अगर एक 2 मिनट डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल एक नंबर है, समझो 5 एक नंबर है, और एक नंबर आप ले सकते हैं 9। ओके, सिंगल सिंगल डिजिट से आपको ऐसे सोचना है कि हम 5 को 1 से डिवाइड कर सकते कि नहीं। 1 से डिवाइड करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं 8 को 2 से डिवाइड, 8 2 से डिवाइड होता, या फिर 2 8 को डिवाइड करता, या फिर 8 3 से डिवाइड नहीं होता, या फिर 3 8 को डिवाइड नहीं करता। इसका सेंटेंसेस जो भी यूज कर रहे हैं ना, उसका मतलब आपको मालूम रहना। ओके, तो अगर हम 2 8 को डिवाइड करता, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो भी कोशेंट है ना वो इंटीजर है। ओके, अगर आप कोशेंट इंटीजर है समझो, तो हम एक्चुअली परफेक्टली अगर आप सेंटेंस यूज करना चाह रहे तो आप ऐसे यूज करना। सो 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, और 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ओके, सो अगर हम इधर देखें ना, तो अगर आप डिवाइड करने गए ना 8 को 3 से, तो ये जो भी कोशेंट है वो इंटीजर नहीं होता। ओके, इंटीजर नहीं होता, आपको कोशेंट डेसिमल नंबर मिलता। ओके, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 8 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, या फिर 8 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ओके, सो डिविजिबल जब वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब है नॉट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा या फिर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा। उसका एग्जैक्टली या फिर कंप्लीटली का मीनिंग क्या है, वो क्वोशिएंट जो भी मिलता है ना वो इंटीजर मिलता। ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपको मालूम रहना ना। अभी क्या हम 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो 2.5 2.5 मिलता, जो कि इंटीजर नहीं मिल रहा। तो हम डिविजिबल कब बोल सकते हैं? जब कोशेंट इंटीजर। ये बेसिक बात है। ओके, लोअर क्लासेस में यू विल स्टडी दिस। ओके, 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से कर सकते क्या? नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 5 से बिल्कुल। ओके, सो एक चीज कंपल्सरी रहता, 1 से तो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकते, और जो भी नंबर है ना वो खुद से कंपल्सरी डिवाइड होता। कोई भी नंबर, ओके, कोई भी नंबर 1 से कंपल्सरी डिवाइड होता और खुद से कंपल्सरी डिवाइड होता। ओके, उतना तो कंपल्सरी होता है, मिनिमम कंडीशन है, ये मिनिमम कंडीशन है। ओके ना। ना अगर आप 9 को देखे समझो, ओके, 9 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। 1 को किसी को 1 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो क्या हम 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 3 से कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट। सो 4 से डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। फिर 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, फिर 9 से डिवाइड होता। ओके, तो 1 से होता कंपल्सरी, खुद से होता। कौन सा भी नंबर के कौन से भी नंबर लेना, वो 1 से जरूर होता और खुद से डिवाइड जरूर होता। ओके ना। अगर आपके ये सेट ऑफ नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स है जो कि केवल और केवल, ओके, ओनली 1 से डिवाइड होते और खुद से डिवाइड होते, बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड ही नहीं होते। अगर जो भी वो वैसे नंबर्स है ना, उस कैटेगरी के नंबर्स है ना, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, और जो भी डिवाइड कर रहे हैं ना हम एक गिवन नंबर को, ये नंबर्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं, या फिर इनको हम डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, डिवाइजर्स। ये जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे ना गिवन नंबर को, उनको हम फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर डिवाइजर भी बोल सकते हैं। ओके, सो प्राइम नंबर के केस में क्या होता, खाली प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर से जिनका और जिनके फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स दो ही है और एक 1 रहता और वो खुद जो भी नंबर है वो खुद ही रहता। समझ में है? ओके, तो ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद अभी हम कॉम्पोजिट नंबर, ये जो भी प्राइम नंबर नहीं है ना वो कॉम्पोजिट नंबर होता। ओके, तो 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कॉम्पोजिट नंबर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स विल बी देयर। ओके, और एक 1 रहता एक 5 रहता, ओनली 2 फैक्टर्स विल बी देयर। ओके, और एक 1 रहता एक 5 रहता, खुद ही रहता। ओके, इन 5 के केस में 5 है। ओके, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स रहते, मतलब 2 से ज्यादा नंबर्स उनको डिवाइड करते। ये कंपल्सरी हर एक नंबर को 2 तो डिवाइड करते ही एक्सेप्ट 1, बट किसी केस में 2 ही भी रह सकते। ओके, जो कि प्राइम नंबर से, और अगर 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? ओके, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे लिखो, ये नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं इसी के साथ। आई विल गिव द नीट क्लियर नोट्स, इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज नोट्स अगर आप अच्छे से मेंटेन करें ना स्टार्टिंग से, तो लास्ट में आपको वो कुछ उधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहता, सब कुछ इधर वो नोट्स में रहता। ओके, हाँ। the numbers, okay, prime numbers are the numbers, okay, which are, okay, the numbers which are having only 2 factors, so factors का और एक नेम क्या बोला मैं, डिवाइजर्स। ओके, only 2 factors or the divisors, okay, that is 1 and itself, okay. The numbers which are having only 2 factors, that is 1 and itself, are called prime numbers. Okay. या फिर the prime numbers are those which are having only 2 factors, that is 1 and itself, वैसे भी बोल सकते हैं। ओके, आप एग्जांपल लिख सकते हैं। सो कंपलसरी, अगर आप 10th क्लास में है तो कंपलसरी 100 तक कितने भी प्राइम नंबर से आपको याद रहना। ओके, टोटल 25 प्राइम नंबर से, तो उनको ये होमवर्क है समझो, आप उसको सर्च करो गूगल में या फिर मेनी टूल्स में, और उनको लिस्ट करो। ओके, 2 है, 3 है, ओके, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, मतलब 23 है। ओके, उसके बाद 29 है। ओके, वैसे 31 है, ओके, फिर 37 है, तो वैसे कंटिन्यू हो जाता। ओके, आपको लिस्ट बनाओ। तो कंपोजिट नंबर मतलब जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड द नंबर्स which are having, ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म करना पड़ता। ओके, ये सेंटेंस दिख रहा, ओके, इधर तक दिख रहा। ओके, which are having more than 2 factors, okay, more than 2 factors, so are called composite numbers. Okay, composite numbers. Okay, examples you can take 4, 6, 8, 9 and so on. Okay, 10, 12. Okay, इधर तक आप पॉज करके कॉपी करें, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।